And the song, of course, people are the comments that I've read so far, people have seen are loving the song, and that's wonderful to hear and very encouraging. मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट गाना लगता है पहला नशा पहला खुमार। वो एक ऐसा लैंडमार्क गाना बना है जो कि which makes me very happy of how it was composed. उस गाने का एक एक पियानो पीस लेके हर चीज मैंने खुद ने बनाई है उसमें। म्यूजिशियन था, मैं घर में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और जब जब ये म्यूजिक कर रहे थे तब मैं स्कूल में था। So hi sir, welcome on Sydney Speaks. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जाने किधर ले जाएं, कमाल का गाया भी है आपने और कमाल के दिखे भी हैं आप, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे क्या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे आइडिया आया सर, पहले वो बताइए। देखिए, ये मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक एक्चुअली बहुत समय से सोच रहा था इसको करूंगा, आई शुड डू समथिंग एल्स अदर देन फिल्म, but life has been busy doing films, and I've been making films for serials, for OTT, and different films. So there was always that time factor, and actually that push and that will to do it again, that kind of thing. And during this lockdown time is at hand. Right now we are at a time where every work has stopped, the shooting has stopped, and also my assistants are no longer being able to come because of the government guidelines, and for safety issues, of course, I don't want them to risk also. So I have a studio of my own. I have everything here. So my sons, who are learning musicians and young teenagers, came up with the idea that why don't we make a independent song and let's produce it ourselves and see how it happens. So I had that in me that I want to do it, but here was an opportunity where it was all feasible and ready to be done. So I composed this song that I had it in mind for some time, and which I thought was a different song, because I wanted to do a song which should sound like a non-film song. It should sound like something different and melodious, and something for the youth, and something that people could sing. People would like the words of it. The words have been written by Alok Ranjan Shah, a very, very wonderful writer who's worked in a couple of films also with me independently. So that's how it came into the gist of the idea, got into shape. And then, of course, after making the song, there was a little pause because we didn't know, I had no idea about how to shoot the song. Okay. And then it was my wife who garnered up a team of young directors, editors, and camera crew and everything. And she took over the production part of it, and she said, let's go and shoot it out. Okay. So since she made the team up and she did everything else, I only had to go and do as the director said to be done. And I'm very glad that people are even liking the video. And the song, of course, people are, the comments that I've read so far, people have seen are loving the song. And that's wonderful to hear and very encouraging. सर बिल्कुल, और मैं पर्सनली आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बचपन से गाने सुन के क्रेजी। आई डोंट थिंक कि कोई सॉन्ग बचा होगा जो मुझे शायद पसंद नहीं है। ईच एंड एवरी सॉन्ग इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो सर मैं पहले कुछ क्वेश्चन शुरू करूँ, मुझे इसका कुछ गाना की दो लाइन सुना दीजिए प्लीज। हाँ जरूर सुना दीजिए। Back so that. Yeah. Is that okay? Perfect. जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें, जाने किधर ले जाए तेरे जुनून की राहें, तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की, हो जा तू वजह है इन सांसों की, सारे एहसासों की, हो जा जाने किधर ले जाए। तारे
सारे जहां से परे तेरा दीवाना चले, वही तेरी बातें वही तेरी यादें राहों के संग चले, जाने किधर ले जाएं तेरे जुनून की राहें। वाह, ब्यूटीफुल। खो जाए इंसान सुन के तो बिल्कुल। सर कितना टाइम थैंक लगा यू। इसको बनाने में, इसको रेडी करने में, टोटल टाइम कितना? मुझे रिकॉर्डिंग में भी टाइम लगता है, बिकॉज आई वर्क वेरी स्लोली एंड सिंस दिस सॉन्ग हैज बीन प्रोग्राम्ड बाय मी and I wanted a very guitarist sound, with a lot of English में बात करूं या हिंदी, what would you हिंदी prefer? हिंदी 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 चलेगा सर। अच्छा, तो करते वक्त भी इसको एग्जीक्यूशन में मुझे कम से कम 10 दिन लगे अच्छा। इसको रिकॉर्ड करने में, मिक्स करने में। रिकॉर्ड करने के बाद, मिक्स करने के बाद, जब क्योंकि मैं हर दिन रिकॉर्ड करके मिक्स करने के बाद वापस सुनता हूँ मिक्स, फिर उसको अपडेट करता हूँ सोच के रात को कि इसमें क्या क्या खामियां लगी, फिर सोचता हूँ, फिर एक दिन सुनता हूँ, फिर उसको मिक्स करता हूँ। तो बहुत फाइन करेक्शन बहुत करता हूँ, वो मेरी आदत है। तो वो करते करते फिर अपने स्टूडियो में मिक्स किया, तो सब फैसिलिटीज हैं यहाँ का, आपको जैसा करना है ना, वेरी गुड टेक्नीशियंस उसमें। तो उसको करने के बाद फिर जब सॉन्ग रेडी हो गया, तो फिर थोड़े टाइम के लिए रुक गया, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, सेफ्टी का मैटर था। तो 10 दिन मुझे लगे होंगे इस गाने में काम करते वक्त। इसमें मेरे बेटे ने ड्रम बजाया, छोटे बेटे ने, 17-year-old नेम अवेद। आपने इसको वीडियो में देखा होगा, बजा रहा है। यस। ओह। हाँ, दैट्स माय सन who's a सिंगर कंपोजर, बहुत अच्छा रिदम बजाता है, पियानो बजाता है। और इस लॉकडाउन में मैंने गिटार भी सिखा दिया उनको, 3 महीने आई मेड क्या देम बात प्रैक्टिस। So I'm utilizing this time in grooming up my son. तो एक मजा भी आ रहा है, एक बॉन्डिंग का टाइम भी मिल रहा है, और उनको म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे भी मजा आ रहा है बड़ा। गॉड इज बीन वेरी काइंड। क्या बात मजा है। आया। एक एरा था 70s 80s का, आर डी बर्मन सर का। फिर 90s आया, वो पूरा जतिन ललित सर के नाम था वो पूरा का पूरा। तो इतना खजाना है सर, इतने गाने हैं खूबसूरत, बहुत मुश्किल है आपके लिए चुनना। बट खजाने में से कोई एक अगर निकालने को बोलूं मैं, ज्वेलरी या जो भी, तो कौन सा है वो आपका सबसे ज्यादा दिल के करीब गाना? देखिए, ये कंपोजर के लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है कि आई अपना नो। एक कोई गाना बताए जाए। आई नो। मगर मेरे लाइफ में ये एक फंडा एकदम क्लियर है। मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट गाना लगता है पहला नशा पहला खुमार। वो एक ऐसा लैंडमार्क गाना बना है जो कि विच मेक्स मी वेरी हैप्पी ऑफ हाउ हाउ इट वाज कंपोज। उस गाने का एक एक पियानो पीस लेके हर चीज मैंने खुद ने बनाई है उसमें, और पूरा म्यूजिक बनाया है, गाना पूरा जो कंपोजिशन जो बनी है, वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक लैंडमार्क हो गया है मेरे करियर का। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात ये कि नई जनरेशन में, एवरी जनरेशन दैट इज हियरिंग एवरी वैलेंटाइन ईयर द सॉन्ग इज, अगेन पीपल आर हियरिंग इट, पूरे रेडियोज में बजता रहता है ये गाना। और जितने कलाकार मेरे दोस्त हैं, वो भी ये गाने को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं उसको, कि आई थिंक दैट क्लियरली इज द टॉप सॉन्ग दैट आई हैव कंपोज्ड। ओके, क्या बात है। तो सर स्टार्टिंग जानना चाहूंगी, एकदम स्टार्टिंग पीछे जाऊंगी, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, कैसे म्यूजिक फील्ड में आने का सोचा था? क्योंकि आपका इंटरव्यू पहली बार ले रहे हैं, हमारे व्यूअर्स पहली बार सुनेंगे आपको, तो वो जर्नी में जानना अच्छा, चाहूंगी, स्टार्टिंग और पहला ब्रेक कहाँ मिला था? देखिए, पहला ब्रेक कुछ लंबी कहानी है, तो कट इट शॉर्ट। सुलक्षणा जी के साथ मैं यूके गया था इन 1986-87। ओके। और वहाँ उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, पढ़ाई चल रही थी, और पहली बार मैं गया था। और दिमाग में ये था कि कुछ करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है, शॉपिंग करके नहीं आना है। क्योंकि मेरे दोनों ब्रदर्स जो थे, जतिन और मंदिर, ये दोनों पहले 19 लेट 70s से 80s में ये लोग म्यूजिक करने की कोशिश कर रहे थे। लेट 70s मिड 70s से दे हैव बीन ट्राइंग टू मेक म्यूजिक, एंड 15 साल इन्होंने
स्ट्रगल किया था और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि एक आध फिल्म में म्यूजिक अच्छा भी दिया, दिल ही दिल में सुलक्षणा जी की पिक्चर थी वो, मगर कुछ बात नहीं बनी। तो मैं ग्रोइंग म्यूजिशियन था, मैं घर में 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और जब जब ये म्यूजिक कर रहे थे तब मैं स्कूल में था, तो उतना डिफरेंस है एज में हमारे, तो एज में रहने से वो एक जनरेशन गैप ऑफ म्यूजिकल थॉट भी हो जाता है कि सोचना अलग हो जाता है। आई वाज लेट मी टेल यू, आई वाज अ बॉर्न म्यूजिशियन and I was a born person to create fresh kind of a sound and everything. Though I was small, it was a gift to me that I had the idea of sound designing very well. तो मैं जब छोटा था तब भी बोलता था नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मगर वो सुनते नहीं थे, क्योंकि मैं छोटा इतना था कि सोचता हाँ कर लेते हैं, इस टाइप का कुछ एटमॉस्फेयर था। एनीवे, जब मैं 87 में गया, मैंने कुछ गाने बना लिए थे बहुत अच्छे, और वहां मैंने कुछ उठा पटक करके एक फाइनेंसर को पकड़ लिया था जो मान गया था रिकॉर्ड करने के लिए, एंड आई वांटेड टू रिकॉर्ड विद ब्रिटिश म्यूजिशियंस। तो मैंने रिकॉर्ड किए थे गाने बिन तेरे सनम, जो कि मेरी वाइफ का पहला कॉम्पोजिशन था और सुपर हिट गाना था, जिससे जतिन ललित की गाड़ी हिली है, और तुम ही हमारी मंजिल हो माय लव। और मेरा एक गाना था जो यस बॉस में रिकॉर्ड हुआ था, चांद तारे, वो भी मैंने इन्हीं दिनों कंपोज किया था। तो ये गाने मैं रिकॉर्ड किया था, और जतिन को भी इंग्लैंड में बुला लिया था to help me with, because he was naturally elder and more experienced at that time. But गाने जो मेरे थे वो गाने बहुत खास गाने थे जतिन ललित के करियर में। तो ये जो गाने थे, ये गाने फिर बाद में पिक्चर में आए। ये पहले एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए थे मैंने, मगर फिर ये पिक्चर में आए। यारा दिलदारा की जो पहली पिक्चर थी, वो पिक्चर तो एक दिन नहीं चली, मगर ये म्यूजिक आज तक चलता है, और इस म्यूजिक की वजह से हमको खिलाड़ी जैसी पिक्चर मिली, हमको राजू बन गया जेंटलमैन पिक्चर मिली, कभी हाँ कभी ना इन गानों की वजह से मिली। तो और मंसूर खान का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, क्योंकि उनकी पिक्चर में शुरू किया था हमने काम, और बिन तेरे सनम बहुत बड़ा हिट हो गया था। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि पिक्चर नहीं चली मगर इनके म्यूजिक में दम है। तो ये सब मिलने से फिर एक सिलसिला ही चालू हो गया। आई कुडंट लुक बैक। So I was very scared to do music because my brothers had struggled for so long. मैं सोचता था मैं नहीं इसमें जाऊंगा बाबा, इसमें तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर ऊपर वाले ने ऐसा धक्का दिया कि गाड़ी ही चल निकली। तो फिर जब आदमी के ऊपर सर पे काम आ जाता है, तो यही डर लगता है कि यार इसमें ये काम बड़ा अच्छा कर लो, इसमें नाम नहीं खराब हो जाए, कहीं जिंदगी खराब ना हो जाए। इस डर के मारे इतनी मेहनत की और इतना अच्छा काम चल गया कि फिर वो माँ बाप का आशीर्वाद था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि the career never went down till we split in फना। फना का म्यूजिक अवार्ड विनिंग रहा है, और लास्ट म्यूजिक था जतिन ललित का, और मेरा गाना चांद सिफारिश उसमें सुपर हिट रहा। और वो म्यूजिक जो था एक लैंडमार्क म्यूजिक मानता हूँ मैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट टू वर्क म्यूजिक उसका, बिकॉज आई वांटेड कि म्यूजिक एक ऐसे लेवल पे जाके रहे कि हम लोग का करियर जो है वो लोग यही माने कि टॉप पे ही थे जब तक। तो वो भी दिन देखा। फिर एक नई जर्नी शुरू हुई। आपको ये भी बताऊं कि स्प्लिट होने के बाद कि फिर आई वाज बैक टू स्क्वायर वन कि अब क्या करना है। मगर फिर मुझे ऊपर वाले ने चांस दिया। मेरा मुन्नी बदनाम गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, और उससे फिर गाड़ी चलने लगी। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट पिक्चर 20 पिक्चरें कर ली अब तक, और सारे अवार्ड जीत लिए। जो इतने अवार्ड होते हैं ये भी पता नहीं था मुझे, जो आ गए हैं। तो ये सिलसिला रहा है। क्या बात है सर, अनबिलीवेबल। तो सब मतलब एक कहानी है, जैसे लगता है ना सुनते रहो बस बैठ करके कि क्या क्या हुआ था। हाँ। तो सर अभी जो ये सिंगल बना है, कितना मजा आया इसको बनाने में, करने में? आप लोग पूरी म्यूजिक की पूरी वो है अपने आप में मिसाल। हाँ। इसको बनाने में कितना डिफरेंट लगा आपकी पूरी जर्नी को अगर हम हटा दे तो, सिर्फ इस सिंगल को देखे तो? मुझे सच कहूँ बहुत मजा आया इसमें। जो क्रिएटिविटी फ्रीडम जो मैंने महसूस की कि इसमें क्या करना है, इसमें सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही देखना है क्या है, कैसा गाना है। और मैंने इसको सच कहूँ तो बड़ा लाइटली लिया। मैंने ये नहीं सोचा इसमें कि कोई बहुत अच्छा ऐसा गाना बनाओ जो कि बहुत कमर्शियल हो, हिट हो, वैसा मुझे करना ही नहीं था। मुझे वो करना है जो मुझे पसंद आए, मुझे मजा आए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा ऋचा जी कि जब आपको आपका काम पसंद आता है और आपको मालूम होता है कि आपने कर दिया है जितना अच्छा हो सकता है, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मैंने जब भी ये महसूस किया और जब भी मैंने ऐसा काम किया है, वो उसका रिजल्ट हमेशा मिला है।
तो मैंने सोचा कि ये गाना एकदम ऐसा गाना है जो फिल्म में मैं दे नहीं सकता, और ये गाना अच्छा है। और बहुत ही सॉरी, बड़े लाइट एटमॉस्फेयर में इसको मैंने किया, बड़े कूलली किया इसको। और बस ये अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि ये जर्नी शुरू होनी थी, ये उसमें शुरू हो गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गाने को बनाने में, अपने बेटों के साथ, और फिर पिक्चराइज करने में बड़ा मजा आया। बड़ी यंग टीम लेके गया था मैं। Ali Haji has directed this video, very young student of actually they're all 19 20 years old kids whom you have seen on the video also, सब बैठे हैं उसमें। 6 लोग की टीम थी ये, और फिर कैमरा की टीम थी एक अलग से। तो उन सबको के साथ शूट करके एक यंग एटमॉस्फेयर में शूट करके मुझे भी मजा आया कि सब खेल कूद में ही काम हो गया। तो अब आपके बेटों का आगे प्लान है क्या बॉलीवुड में आने का, या किस तरीके से, क्या फ्यूचर है उनका, क्या डिसाइड किया है उन लोगों ने? They will definitely go into music. They are music lovers, very good learners, and they'll work in music. Okay. मैं अभी तो सिखा रहा हूँ, then they will do what they want to do, and my responsibility is to teach them. फिर वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे सर। और 90s में उतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था जितना अब के यंग सिंगर्स को मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म। तो आपको लगता है बिल्कुल। इट इज बेनिफिशियल फॉर देम, और कहीं ना कहीं प्रेशर एक वो रहता है कि सारी दुनिया देख रही है, या ट्रोल भी हो सकते हैं, या जो भी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है कि, और एक बात इसमें ये भी है, वो हर दौर में रही है कि अगर आप में टैलेंट है तो वो आप जरूर कहीं ना कहीं शाइन करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जैसे मुझ में था कुछ अच्छे गानों बनाने का, अच्छा म्यूजिक बनाने का टैलेंट था, तो सब चीजें पीछे रह गई। और कभी ऐसा फील्ड हमने नहीं किया है कि जाके किसी के ऑफिस में बैठे हैं और काम मांग रहे हैं, कभी नहीं। जस्ट कीप डिलीवरिंग गुड वर्क, success and keep the film will follow you. You don't have to do anything, but you have to have the potential, the sincerity, the love for your work, your dedication. All that comes into play, and of course your potentiality. What kind of potential you have? If you have it in you, God is with you. I feel that. वेरी ट्रू सर। तो सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है मुझे, बट एक टाइम लिमिट Thank you, होती है। Richa. लेकिन सर चलते चलते जो आपके पीछे वो चलते चलते है ना, वो मेरी जान से भी प्यारे गाने हैं उस पिक्चर के। उसका टाइटल सॉन्ग सुनना अच्छा, चाहूंगी आपसे। आई एम अच्छा, जस्ट हाँ, क्रेजी फॉर द सॉन्ग, स्पेशली दैट चलते चलते जी का जी जी, हाँ टाइटल सॉन्ग। जी, जरूर। जी। मेरा भी फेवरेट है ये गाना। और अब मुझे कितना याद है, ये चैलेंजिंग बात है। वाह, अमेजिंग, गूज़बम्स आ गए मुझे सर। थैंक यू सो जी मच सर, थैंक यू सो मच सर। विश यू ऑल द बेस्ट, आपके ये सिंगल और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक एल्बम्स आए फॉर श्योर, हम वेट करेंगे। एंड सर थैंक यू। बस ऐसे ही हमें हमसे बात करते रहिएगा प्लीज,
जल्दी जल्दी मिलते जरूर जरूर, so nice speaking to you, thank you so much. हैं। सेम हियर सर, Thank you. टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।